اب میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ سیف علی خان کی جو جدید جائیداد ہے جس کی ویلیو تقریباً 15,000 کروڑ ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کی نانی کی طرف سے انہیں آ رہی تھی. وہاں پہ انڈیا میں ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو کہتے ہیں اینیمی پراپرٹی. اینیمی پراپرٹی اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں سے مائیگریٹ ہو کر پاکستان یا چائنا ان دو ممالک میں شفٹ ہو جائیں گے نا جن کی فیملیاں, تو اس کو یہ دو اینیمی کنٹری کہتا ہے انڈیا. ان کی سوچ دیکھیں ہمارے بارے میں اور چائنا کے بارے میں, وہ ہم دونوں کو اینیمی کنٹری کہتا ہے. انہوں نے اس کے کورٹ آرڈر آ گئے کہ تمام جائیداد بحق سرکار ضبط ہو گئی ہے. ایک کٹ سیف علی خان کو ادھر لگا گردن کے پاس, ایک کمر میں لگا, اور 5ویں دن وہ واک کرتے ہوئے باہر آ گئے ہیں. شیو گرو شنکر اپارٹمنٹس, اس ایریے میں عام آدمی داخل بھی نہیں ہو سکتا, نمبر 1. ہاں جی. دوسرا یہ وقوع ہے چوری کا, لگا لیں. ہاں, چوری کرنے کی نیت سے آیا بندہ. ٹھیک ہو گیا. FIR چوری کی ہوئی ہے, اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی دفعہ کیوں نہیں لگی؟ وہ بندہ لفٹ سے آ نہیں سکتا, صحیح, ٹھیک ہے, اور بغیر واقفیت کے فرینڈلی انٹرنس نہیں ہو سکتی. کہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسما فلپس ہیں ان کی جو ملازمہ ہے, 4 سال سے ان کے پاس ہے, اس کے ہاتھ پہ بھی ہلکا سا کٹ لگا. سب سے پہلے وہ اسی کو جو اس نے لائٹ جلنے میں لگی ویسے نا. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, مجھے علی رضا شرازی کہتے ہیں اور آپ فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے شہر بمبئی میں کافی زیادہ اس وقت چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ سیف علی خان پر قاتلانہ حملہ کیسے اور کس نے کروایا. اس سے پہلے سلمان خان کے گھر گولی چلی, اور اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے بابا صدیقی کو قتل کر دیا گیا. آخر یہ فلم سٹاروں پر اس قدر جو انڈیا میں گھیرا تنگ کیوں ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بیٹھے ہیں سید فرقان شاہ, سینئر اینالسٹ. انہی سے جانیں گے کہ یہ جو سیف علی خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, کیا اس میں اس کی بیوی ملوث ہے یا کوئی اور محرکات ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر, اللہ کا کرم. بمبئی شہر میں ساتھ ساتھ ہی کہتے ہیں 1 کلومیٹر دور شاہ رخ خان کا گھر ہے, اس کے بعد سلمان خان کا گھر ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ قاتلانہ حملہ میں جو شخص گرفتار ہوا ہے اس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے یا کوئی اور اس کے پیچھے بندہ ہے؟ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈاؤٹ پیدا کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ سیکورٹی گارڈ وہاں پہ 6 کے 6 سو رہے تھے, ٹھیک, ایز دی ٹائم آف اکرنس, ٹھیک ہے, 6 کے 6 سو رہے تھے اس وقت. یہاں پہ نا یہ بیسیکلی ہیں شیو گرو شنکر اپارٹمنٹس, یہاں پہ کافی زیادہ ایکسپینسو, بہت مہنگے. اس ایریے میں عام آدمی داخل بھی نہیں ہو سکتا, نمبر 1. ہاں جی. دوسرا آپ کے لیے یا یہاں پہ پاکستان میں بھی مائٹ بھی پاسبل ہو, لیکن وہاں پہ جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر اپارٹمنٹ کی علیحدہ لفٹ ہے جو اس کے گھر میں کھلتی ہے اور اس کے اپنے کنٹرول میں. جو سیف علی خان کا گھر ہے نا وہ 12 فلور پہ ہے, 12ویں پہ. اس سے نیچے 11ویں فلور پہ اس کی جو ایکس وائف ہیں ان کا بیٹا رہتا ہے. ادھر 2 چھوٹے بچے ہیں, تیمور اور جہانگیر, جو یہ جو خاتون ہیں جن کے ساتھ رہتے ہیں, کرینہ کپور. ٹھیک ہو گیا. اور اس دن میں جو چیزیں ڈاؤٹ پیدا کری ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ بندہ لفٹ سے آ نہیں سکتا, صحیح, ٹھیک ہے, اور بغیر واقفیت کے فرینڈلی انٹرنس نہیں ہو سکتی. کہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. 12ویں فلور پہ سیڑھیوں سے وہ 6ویں فلور تک کی اس کی ویڈیو اس کے بعد نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ AC کے رستے آیا تو وہ انسان تھا کہ چوہا تھا, یہ میرا ایک سوال ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا اس کی جو سیف علی خان صاحب کی اسپائنل کارڈ میں ایک جو چھری ہے, ڈیگر نہیں ہے, خنجر, وہ ٹوٹ کے اندر رہ گئی. وہاں سے 5ویں دن وہ باہر آ کے ہیلو ہائے پولیس میں اپنے وہ جو فینز ہیں ان سے بائے بائے کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جتنا کہ مجھے میڈیکل کے بارے میں, دیکھیں میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں, لیکن جو میں نے آج تک سنا ہے کہ اسپائنل کارڈ کو ہلکی سی یہ چیز ٹچ ہو جائے تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور بندے کا دھڑ مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے نا غالباً 7 سال کا تیمور, وہ اسپتال میں ساتھ تھا, لیکن وہاں پہ کسی زیدی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے میڈیکل کے اوپر, جو ہسپتال لے کے آتا ہے نا, ہسپتال والے لکھواتے ہیں. نہیں 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 نہیں, رکشہ ڈرائیور کا نام اور ہے, اچھا, اور یہ زیدی صاحب اور ہیں, ٹھیک ہے, جو لے کے آئے ہیں. ان کے گھر الیکٹرک گاڑیاں تھیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
12 अपार्टमेंट्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे है कि इधर भी अपार्टमेंट है, इधर भी अपार्टमेंट है, और उस एरिया में आम आदमी रिहायश पजीर नहीं हो सकता। सही है। ठीक हो गया। बिलियनर लोग हैं, इनकी गाड़ियां खराब थी, क्या इनके इलाके में इतने बुरे हालात थे कि किसी ने इनको गाड़ी नहीं दी? नहीं, इनकी गाड़ियां खराब नहीं थी, इसके बेटे को ड्राइविंग नहीं आती थी। यानी कि वो लाइसेंस नहीं है ना उसका। बेटा तो अभी 7 साल का है। नहीं, वो जो बड़ा बेटा नीचे रहता है, अमृता सिंह का बेटा। हाँ जी, तो उसकी देख, वो उस अमृता सिंह वाला जो बेटा है, उसने क्यों नहीं अपनी लिखवाई वहां पे एंट्रेंस मेडिकल? वो छोटी एज का हो, उसकी वजह से ना लिखवाई हो? नहीं नहीं, वो दाढ़ी वाला भाईजान। अच्छा। हाँ जी, ये आपको मैं चीजें बता रहा हूँ, फिर बाद में आपने और मैंने इस पे तबसरा करना है। ठीक हो गया। हॉस्पिटल इनसे 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे है। जैसे हमारे लाहौर में 1122 है, क्या इंडिया में ऐसी सहूलत नहीं मौजूद होगी? बट वो उन्होंने फौरी तौर पर, ये जो मेरे एनालिसिस हैं, जो मुझे राय के मुताबिक पता है, कि रिक्शे पर जाना पसंद किया लीलावती हॉस्पिटल, और वहाँ पर जाते सारी डॉक्टरों ने उनकी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की है। अस्मा फिलिप्स हैं इनकी जो मुलाजमा है, 4 साल से इनके पास है, उसके हाथ पे भी हल्का सा कट लगा। सबसे पहले वो उसी को जो उसने लाइट जो जलने में लगी वैसे ना। ठीक है। अब आप मेरी एक बात का और जवाब दीजिएगा, मादरत के साथ में आपस में बात करेंगे ना। नहीं, अच्छी बात है, आवाम को, हाँ, आवाम को अवेयरनेस पे लिए। ये वकूआ है चोरी का, लगा लें। हाँ, चोरी करने की नीयत से आया बंदा। ठीक हो गया। FIR चोरी की हुई है, अटेम्प्ट टू मर्डर की दफा क्यों नहीं लगी? उसने कातलाना हमला किया, बिल्कुल किया, 2 लोगों पर किया, 2 लोगों पे किया। फिर उसने तवान मांगा। हाँ, उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए 1 करोड़ रुपया। उसने कहा कितने चाहिए? उसने कहा 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया। तवान की दफा लगी? नहीं, मैंने नहीं देखा, FIR में नहीं है। हाँ, नहीं है, मैंने देखी है। FIR सिर्फ चोरी की है। चोरी किया। ठीक है। और वो जो बंदा, वो तो ड्रॉज में से जब वो जा रहा है तो उसके पाँव में जूती है, वहां पे जाके ड्रॉज में से शूज जॉगर ले रहा है। उसका और सैफ अली खान का एक ही पैर है। ठीक है। वो इनका मुलाजम है या बिल्डिंग का मुलाजम है। उसका ऊपर सर्वेंट क्वार्टर में उसने अपनी चीजें रखी हुई थी, वो जूती पहनने चेंज करने गया था, जिसको इन्होंने दिखाया। उससे मुशाबत रखता हुआ बंदा। फिर इन्होंने कहा कि बंदा, हमने एयरपोर्ट और वो रेलवे स्टेशन हर चीज सील कर दी, और 4 घंटे बाद इनके घर के पीछे पार्क है, जिसने इतना बड़ा क्राइम किया, वो वहां पे क्या कर रहा था? एक्सरसाइज करने गया था। उसी पार्क से एक बंदा बांग्लादेशी गिरफ्तार कर लिया। तो वो कहते हैं उससे मिलता जुलता बंदा रेलवे स्टेशन पे भी देखा गया। अब ठीक है, ये तो है सारी बातें। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसमें कोई शक पैदा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, काफी। अगर ये जेन्युइन वकूआ हो तो बाकी दफा अटेम्प्ट टू मर्डर तो मेन है, जिसका मेडिकल भी आ गया। ठीक है। और इनकी फाइनल स्क्वाड में तकरीबन 3 इंच की छुरी है, बिल्कुल, जो रह गई थी, जो डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से तंदुरुस्त होने के बाद जो है वो रिक्शे वाले को इनाम भी दे दिया, और पैदल लोगों को बाय बाय भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। और एक उसके छुरी के अब 3 टुकड़े, एक घर से मिला, एक हड्डी वो जिस्म से मिला, और एक इतना सा अब तीसरा पीस भी मिल गया। ये उनकी इन्वेस्टिगेशन। मैं आम लोगों की तरह ये नहीं कहूँगा कि मेरी चिड़िया इंडिया गई है का, ये सारा कुछ इंडियन मीडिया से पता लग रहा है। ठीक है। और सारे दोस्त ऐसे करते हैं, चिड़िया, कौवा, तोता, ये सारी लफ्ज़ों की हेरफेर है। ठीक है, कि ये अगले को प्रूव करना कि जी मैं, हाँ, मेहनत बहुत होती है, गूगल पे सर्च करना पड़ता है, यूट्यूब को 5-5, 10-10 घंटे देखना पड़ता है, कई दिन, फिर आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिलती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो सैफ अली खान साहब है ना, उन्होंने सबसे टॉप का फ्लोर लेना क्यों पसंद किया? पोल्यूशन की वजह से। उन्होंने कहा कि जितना ऊपर जाएंगे ना, पोल्यूशन। जितने भी आर्टिस्ट है ना, आई एम सॉरी टू से, ये सारे रूफटॉप ही लेते हैं। रूफटॉप लेते हैं जितने भी, यानी कि अमिताभ बच्चन का जो है वो जो दुबई में है, उसका भी वो ही रूफ पर उसने लिया हुआ है, बुर्ज खलीफा में भी। ठीक है। इसमें अब आते हैं कम टू द पॉइंट। इनकी जो है ना सैफ अली खान की मिसेस करीना कपूर, उनके बकौल उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ देर पहले एक मैसेज किया है कि मैं पार्टी पे जा रही, करिश्मा कपूर और वो अनिल कपूर की जो बेटी हैं, हम लोग पार्टी पे हैं और ड्रिंक करके एंजॉय कर रहे हैं। उस मुताबिक घर में सैफ अली खान, बच्चे, एक मेल मुलाजम, एक फीमेल मुलाजम, और एक ये अस्मा फिलिप्स जो जख्मी हुई हैं, ये घर में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। सेम इस तरह ही है। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। ठीक है। असल बात यह है कि सैफ अली खान की जो जद्दी जायदाद है, जिसकी वैल्यू तकरीबन
15,000 करोड़ है, ठीक है, वो इनकी नानी की तरफ से इन्हें आ रही थी। वहाँ पे इंडिया में एक तरीक़ेकार है कि इसको कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं कि जो लोग वहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान या चाइना इन दो ममालिक में शिफ्ट हो जाएंगे ना, जिनकी फैमिलियाँ, तो उसको ये दो एनिमी कंट्री कहता है इंडिया। उनकी सोच देखे हमारे बारे में और चाइना के बारे में, वो हम दोनों को एनिमी कंट्री कहता है। उन्होंने इसके कोर्ट आर्डर आ गए कि तमाम जायदाद बहक सरकार जब्त हो गई है, और इनके घर में एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त होटल भी खुला हुआ है, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा इनकी पूरे ख़ानदान को किराया आता है। पहला एक घर भी इन्होंने किराए पे दे दिया हुआ है। हाँ जी। अब ऐसे हुआ है कि करीना कपूर की और इसकी काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही थी, ठीक है, क्योंकि वो भी रात को नशे में होती थी, ये भी रात को नशे में होते थे। इसका सबूत ये है कि जब इनके घर में इतना शोर पड़ा, ठीक है, दूसरा नौकर उठ के नहीं आया, क्योंकि घर की रूटीन है रोज लड़ाई होना, ठीक हो गया। पूरे अपार्टमेंट्स में से किसी ने इंटरफेरेंस नहीं किया। आम रूटीन में वहां पे शोर करें तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक हो गया। अब ये बहुत सी चीज़ें डाउटफुल हैं। एक कट सैफ अली खान को इधर लगा गर्दन के पास, एक कमर में लगा, और 5वें दिन वो वॉक करते हुए बाहर आ गए हैं। और नई चीज़ ये है कि पुलिस वालों की सारे जितने हैं ना 87 सर्टिफिकेट इशू हैं। 87 इंडियन पुलिस को 87 सर्टिफिकेट दिए गए हैं कि आपने फौरी तौर पे ये बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, ठीक है। 87 सही, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? बिल्कुल। कि 87 यानी कि पुलिस ने दिनों में फटाफट घंटों में गिरफ्तार करके सर्टिफिकेट भी तकसीम कर दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की हुकूमत इस चीज़ को दबाना चाहती है, क्योंकि पटौडी ख़ानदान और कपूर ख़ानदान दोनों एक इंडिया के बड़े ख़ानदान हैं। नवाब पटौडी, ठीक है, ये बड़े ख़ानदान हैं, इनकी बात को दबाना चाहते थे। असल वजह यह है कि अब सैफ अली, क्योंकि करिश्मा कपूर को करीना कपूर को ये करीना कपूर को अब अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। अच्छा। उसने कहा कि तुम्हारी तो सारी जायदाद जब्त हो जाएगी, और रोजाना इनके अहले इलाका के बकौल इनके घर ये लड़ाई अब मामूल बन गई है। अच्छा। उसने कहा अगर ये फ्लैट भी जब्त हो गया, क्योंकि ये उसी प्रॉपर्टी के किराए से बना हुआ है, तो मैं कहाँ जाएंगे हम लोग, और इनके घर फसादे अजीम शुरू हो गया। अच्छा। और एक मेरी मुबैना इतला के मुताबिक ये दोनों की लड़ाई के दौरान करीना कपूर ने छुरी मारी है। अच्छा। ये वो बात है जो ना इंडियन मीडिया करना चाह रहा है, घुमा घुमा के ये चाह रहा है कि आप लोग खुद समझ लें। अच्छा। अगर ये ऐसा होता, इनके घर ऐसा कोई तीसरा बंदा आया होता, तो इनका जो घर में एक मर्द मुलाजम था, जब सैफ अली खान ने कहा कि मैंने बाहर से कुंडी लगा दी, हाँ, ठीक है, जख्मी हालत में उसको तो बंद करके तो फिर चोर के लिए कुंडी किसने खोली? ठीक है। फिर वो कह रहे जी एसी के रास्ते से, 12वें फ्लोर से एसी के रास्ते से अगर चोर नीचे तक आएगा तो उसकी टांगे 4 होनी चाहिए और इतनी लंबी 2 होनी चाहिए। इंसान नहीं आ सकता। बिल्कुल सही है। चूहा आ सकता भी नहीं आ सकता, चूहा आ सकता है सिर्फ, ठीक है। और इनका दावा है कि वो एक इंसान है जिसने छुरी मारी। इन्होंने एमरजेंसी में ये एक बनाई है, इन्होंने एक फिल्मी स्टोरी, और आप इसको जब सुनेंगे इंडियन मीडिया पे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे किसी फिल्म का स्क्रिप्ट बता रहे हैं आपको। ठीक हो गया। ये टोटल मियाँ बीवी की लड़ाई है, लेकिन वो उस वक्त पोजीशन ऐसी बन गई कि उन्हें किसी और पे डालनी पड़ी, नहीं तो उनकी बदनामी बहुत ज़्यादा होनी थी। एक कपूर फैमिली का फंक्शन था, कपूर फैमिली को नरेंद्र मोदी साहब ने बुलाया, वहाँ पे ये भी साथ चले गए सैफ अली खान साहब, और नरेंद्र मोदी साहब के आगे पीछे होते रहे, इतना आगे पीछे हुए कि आप वो वीडियो देख लें, उनके चैनल चला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब चिढ़ गए, मुंह लगाया उसने, नहीं वो चिढ़ गए कि यार हमें एक बंदा मेरे आगे पीछे तरीफे कर रहा, आपने ये किया, आपने वो किया, क्योंकि इनका मकसद था कि हमारी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बचा ली जाए। बेसिक जौन सा पर्पज़ है वो ये है, और यही बात है असल। बाकी ये फिल्में हैं, जितनी मर्जी कहानियां बना ले, चोर आया
12वें फ्लोर पे इतने सेंसिटिव इलाके में 6 के 6 गार्ड सो रहे थे, तमाम कैमरे काम नहीं कर रहे थे, इवन के इनके अपने फ्लैट में हर रूम में कैमरा लगा हुआ है। बिल्कुल, हर एक रूम में कैमरा लगा ठीक हुआ है, है, बाहर जो दरख्त लगा हुआ और है जो उस पर भी कैमरा लगा हुआ है, और हर फ्लैट की लहदा लिफ्ट लिफ्ट है। है। जो सीढ़ियां हैं वो क्यों बनाई हैं? क्यों नहीं? अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे आग लग जाए, इमरजेंसी एग्जिट के तौर पे सीढ़ियां बनाई गई हैं, और हर अपार्टमेंट में तब तक इंडिया में नक्शा ही नहीं पास होता है जब तक ये सीढ़ियां ना बनाई जाए। हर फ्लैट की अलहदा लिफ्ट है और उसके फ्लैट वाले के कंट्रोल में है, और वो फ्लैट के अंदर खुलती है, मेन लिफ्ट भी है, ठीक है, लेकिन लिफ्ट के अंदर भी कैमरे हैं, लिफ्ट के ऊपर भी बाहर कैमरे लगे हुए हैं जहां से उनकी एंट्री है, एग्जिट है। एक बंदे को दिखा के, और वो देखें, अगर वो चोर है, उसने लाल रंग का रुमाल पहना हुआ है, उसको अपना मुंह छुपाने की बजाय छुपाना चाहिए था, बिल्कुल छुपाना, वो मुंह निकाल के यूं कैमरे की तरफ देख रहा है, यानी कि उसकी रूटीन है। सही, ठीक है, और ये टोटल एक फिल्म है, ये एक फिल्म की स्टोरी है। असल हक़ाइक़ वो हैं कि करीना कपूर ने अपने शोहर को लड़ाई के दरमियान छुरी मार दी, और उसको उन्होंने, क्योंकि अब सैफ अली खान का फ्यूचर भी डार्क है, मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उसको किसी फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, वो छोटे छोटे ड्रामों के एपिसोड में आ रहा है, और वो कोई इतना ब्राइट फ्यूचर नहीं है। एक वजह और, अगर इस पे कातलाना हमला हुआ है तो शाहरुख खान ने और वो दूसरा जो खान है सलमान खान ने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की? करनी थी ना उन्होंने, वो नजदीक ही रहते हैं, नजदीक रहते हैं। अमिताभ बच्चन, ये तमाम अदाकारों, किसी एक ने मजम्मत की नहीं की, कातलाना हमले की। तो ये सारे सबूत हैं, और ये नाजरीन आपके सामने रखने बड़े ज़रूरी थे, ताकि पता लगे। अभी मज़ीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली गई है, वो अगले किसी दिन आपको बताई जाएगी। मैं समझता हूँ आज इतनी काफ़ी नहीं है। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि सीरियन एनालिस्ट सैयद फुरकान शाह साहब ने वो बातें करके दिखाई जो आपने किसी ने भी इंडियन मीडिया पर नहीं सुनी होगी। इन्होंने ये अपना तज्जिया किया कि ये करीना कपूर ने अपने शोहर सैफ अली खान को छुरी मारी, और उसकी वजह 15,000 करोड़ रुपए की जायदाद है, जो सरकार जो है, जो बहक्के सरकार जब्त होने जा रही है। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और फुरकान शाह साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।